Good morning, students. Welcome to the science class. Today we are going to start our new chapter, that is chapter from biology part, tissues. It is chapter 6 of your science syllabus. Now, tissues, you have read in your previous classes about cells, and you also read about that cell is the structure and functional unit of our life. Now, in this chapter, we shall deal about tissues, that is the group of cells. Group of cells which are specialized in their functions are called tissues. So, in this chapter, we will study about tissues. Now, from the last chapter, that is chapter of biology, cells, we recall that all living organisms are made up of cells. In unicellular organism, a single cell performs all the basic functions. For example, in amoeba, a single cell carries out the movement, the intake of food, and the respiratory gases. They are also, we can say, the single cell carried out respiration and excretion. But in multicellular organism, there are millions of cells. So most of these cells are specialized to carry out a few functions. So each specialized function is taken up by a different group of cells. So these group of cells carry out a particular function. Okay. Now we can say, so this group of cell is known as tissue. So what is tissue? Tissue is a group of cells having similar structure and function. ओके टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसकी स्ट्रक्चर सेम होती है. ग्रुप ऑफ सेल्स में जितने भी सेल्स हैं उनकी सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी होगी और सबका फंक्शन भी एक जैसा होगा. ओके सो इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज. they carry out specific functions. Okay, we know that in multicellular organisms, because multicellular organisms are made up of many cells, so their body is very complex. So body is made up of many cells, so each and every part the cell are different, and the group of cells which together make or do a specific function is called a tissue. Okay, so in multicellular organism there is a division of labor for each and every work. There is a division of labor. For example, digestion is carried out by digestive system, respiration is carried out by respiratory system, excretion is by excretory system. So these systems are made up of organs, and the organs, they are made up of tissues. So the group of tissues belonging to these organs, they are specific in their functions, and they have different structure. So we can't say that in a cell all the cells are, in a body that all the cells are alike. They are different. Okay, and such a group of cells which together form, or we can say a group of cells that are similar in structure and they work together to achieve a particular function forms a tissue. ओके, ग्रुप ऑफ सेल्स को जो कि साथ में मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं बॉडी के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं. नाउ एग्जांपल, इन ह्यूमन बीइंग्स द सेल्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन मूवमेंट. मस्कुलर टिश्यू जो हैं उनके सेल्स जो है कभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कभी रिलैक्स होते हैं, और जिससे हमारी बॉडी मूव कर पाती है. तो मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं उनकी स्ट्रक्चर और जगह के टिश्यूज़ से अलग हैं. ओके, और जैसे नर्वस टिश्यू से अलग है, और वी कैन से जो डाइजेस्टिव टिश्यूज़ हैं, जो स्टमक के, लीवर के टिश्यूज़ हैं, उनसे अलग हैं वो. ओके, सो एवरी ऑर्गन्स के जो टिश्यूज़ हैं वो अलग अलग हो सकते हैं. नाउ इन प्लांट द सेल्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट. इसी तरह से प्लांट बॉडी में वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं. जाइलम वाटर का कंडक्शन करते हैं, फ्लोएम फूड का कंडक्शन करते हैं. एंड दे आर ऑल्सो डिफर फ्रॉम द एनिमल टिश्यूज़. जो एनिमल बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं उससे प्लांट टिश्यूज़ अलग होते हैं. ओके, सो वी कैन से, सो टिश्यूज़, सो ग्रुप ऑफ सेल्स विच टुगेदर we can say which together achieve, which work together and achieve a particular function in the body is called a tissue. Okay, now differences between plant and animal tissues.
प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि प्लांट और एनिमल बॉडी अलग अलग है, उनमें कई तरह के चेंजेस हैं उनकी बॉडी में, इस वजह से वी कैन से देयर इज़ ऑल्सो डिफरेंसेस इन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. Now, what are the prominent differences between plant tissues and animal tissues? Plant do not move from one place to another. Okay, they are stationary. Plant are stationary. They can't show displacement. Most of the cells and tissues in plant provide mechanical support and strength. Okay, so most of the tissues consist of dead cells because they provide mechanical support and strength to the plant. Plant स्टेशनरी होते हैं, दे रिमेन एट अ प्लेस, दे कांट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं. इस वजह से प्लांट टिश्यूज़ जो मेन उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं क्योंकि एक ही जगह प्लांट को वी कैन से उसको नेचर के कांटेक्ट में रहना पड़ता है, प्लांट को ज़्यादा एनवायरमेंटल फैक्टर्स को जो वी कैन से जो नेचुरल फैक्टर्स है उनके कांटेक्ट में ज़्यादा रहना पड़ता है, हवा पानी. इस वजह से प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं प्लांट टिश्यू को इन सब से इंटैक्ट रहने के लिए जो है इन सब को सहने के लिए जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वो प्लांट टिश्यू प्रोवाइड करते हैं. प्लांट बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का मेन काम होता है टिश्यूज़ का. द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस ओनली इन सम रीजन्स. सो प्लांट हैव टिश्यूज़ कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ विच डिवाइड एंड हेल्प इन ग्रोथ. ओके, एंड परमानेंट टिश्यूज़ विच डू नॉट डिवाइड. जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में होती है, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में प्लांट की ग्रोथ होती है और इस वजह से ऐसे टिश्यूज़ को जो लगातार डिवाइड करते हैं और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहा जाता है. ये टेम्परेरी टिश्यूज़ होते हैं. इसके अलावा परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं जो कि डिवाइड नहीं होते हैं. सो वी कैन से प्लांट की बॉडी कैसे कैसे अलग है. एक तो प्लांट बॉडी स्टेशनरी होती है, दूसरी बात प्लांट की ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक रीजन तक सीमित लिमिटेड होती है. ओके, और उसमें टेम्परेरी एंड परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं. टेम्परेरी टिश्यूज़ जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं लगातार, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ डू नॉट डिवाइड. ओके, वाइल एनिमल टिश्यूज़ के केस में क्या होता है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नीड मोर एनर्जी देन प्लांट्स. सो मोस्ट सेल्स एंड टिश्यूज़ इन प्लांट्स आर लिविंग सेल्स. ठीक है, एनिमल जो होते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाते रहते हैं और इस वजह से उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है बिकॉज दे शोज़ डिस्प्लेसमेंट, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दे रिक्वायर मोर एनर्जी. ओके, सो मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड द टिश्यूज़, जो प्लांट्स में जो टिश्यूज़ होते हैं सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं और जबकि प्लांट में ज़्यादातर जो टिश्यूज़ होते हैं वो डेड टिश्यूज़ होते हैं, डेड सेल्स के बने होते हैं. ठीक है, और एनिमल की बॉडी में लिविंग सेल्स से बने होते हैं. नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ द एनिमल्स इज़ मोर यूनिफॉर्म. ओके, द ग्रोथ ऑफ animals is more uniform, so animals do not have separate dividing and not dividing cells. एनिमल्स की बॉडी में ऐसा नहीं होता कि कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ग्रोथ होती है, ऐसा नहीं होता. एनिमल की बॉडी में यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, सभी बॉडी पार्ट जो है वो ग्रो करते हैं. इस वजह से बॉडी देर इज़ वी कैन से द सेल्स आर नॉट डिवाइडेड एज डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स. इसलिए सेल्स का डिवाइडेशन डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स में नहीं होता है. ठीक है, एनिमल्स हैव ऑर्गन्स हैविंग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. एनिमल्स में ऑर्गन्स भी होते हैं जिनके कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं. सो द ऑर्गन्स हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़. और ऑर्गन्स किसके बने होते हैं, स्पेशल टिश्यूज़ के बने होते हैं. सो व्हाट इज़ द प्रोमिनेंट डिफरेंस, प्लांट्स आर स्टेशनरी वाइल एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो एनिमल्स रिक्वायर मोर एनर्जी, सो द टिश्यूज़ आर अकॉर्डिंग टू दैट energetic requirements of animals, while in plants we can say the plants remain at a place, so the tissues so that most of the tissues are dead, while in animals the tissues or the cells are living. दूसरा है कि प्लांट्स में डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स में डिवाइडेशन होता है टिश्यूज़ का, जबकि प्लांट्स में एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है. इस वजह से डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स में डिवाइडेशन टिश्यूज़ का नहीं होता है. ओके, सो दीज आर द प्रोमिनेंट डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़. इस वजह से प्लांट की बॉडीज़ में अलग तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं और एनिमल्स में अलग तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं. ठीक है, सो प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सो वी विल स्टडी दीज टिश्यूज़ वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट प्लांट टिश्यूज़. प्लांट टिश्यूज़ आर ऑफ मेन टू टाइप्स. ठीक है, दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़.
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं प्लांट टिश्यूज़ मेनली। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो फिर तीन तरह के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर ऑफ थ्री टाइप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर ऑफ थ्री टाइप। दीज आर अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। नाउ परमानेंट टिश्यूज़. Permanent tissues are of two types, simple permanent tissues and complex permanent tissues. They are of two types. Simple permanent tissues जो होते हैं फिर वो तीन तरह के होते हैं, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And complex permanent tissues further two types के होते हैं, xylem and phloem. तो इस तरह से प्लांट टिश्यूज़ का डिवाइडेशन है जो कि इस फ्लो चार्ट से भी दिखाया गया है एंड वेरी इंपॉर्टेंट. सो let us discuss this. Plant tissues, these are of two type, meristematic tissue and permanent tissues. Meristematic tissues are of three type, apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue and lateral meristematic tissues. These are of three type. Okay, now permanent tissues. Permanent tissues are of two type, simple permanent tissues and complex permanent tissues. They are of two type, permanent tissue. सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं फर्दर तीन तरह के होते हैं, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. दीज आर ऑफ थ्री टाइप. ओके, नाउ जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं दीज आर ऑफ टू टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लांट टिश्यू कि प्लांट टिश्यू कितने तरह के होते हैं. Now first of all we will study about meristematic tissues. सबसे पहले meristematic tissues के बारे में पढ़ेंगे कि meristematic tissues जो हैं, meristematic tissues कितने तरह के होते हैं और ये कहाँ कहाँ present होते हैं plant body में. Now the meristematic tissues are found in the growing regions of the plant, like the tips of the root, stem and branches. They divide continuously and help in the growth of the plant. ओके, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं इनको डिवाइडिंग टिश्यूज़ भी बोलते हैं और ये टेम्परेरी टिश्यूज़ होते हैं. ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और ये मेनली जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. ओके, ये जो ग्रोइंग रीजन्स जो होते हैं प्लांट के वहाँ पाए जाते हैं. सो दीज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन बिकॉज इन दीज रीजन दीज dividing tissues are present which are called meristematic tissues. Okay, so these tissues are present in dividing regions. Okay, now these are of three type. First, apical meristematic tissues. Now the apical meristematic tissues, they are present in the tips of the stems and the roots. Okay, जो stem and roots की जो tips होती हैं उस पे apical meristematic tissues present होते हैं. They help in the growth of stems and root. ये root और stem की growth में help करते हैं. Okay, so these are present in the growing tips of stems and the roots. Okay, now apical meristematic tissues, they are present in the growing tips of stems and the roots and they increases the length of the stem and the root. Stem और root की जो length है उसकी growth में ये help करते हैं, उसकी growth, उसकी length को बढ़ाते हैं. Okay, tips पे present होते हैं. Now next है lateral meristematic tissue. Lateral meristematic tissues, they are present in the sides of the stems and the root. Okay, stem and root की sides में present होते हैं, lateral side में present होते हैं, किनारे में sides में present होते हैं. और इनका main काम क्या होता है? They help to increase the girth of the stem and the root. They increase the girth of the stem and the root. ये stem और root की girth को increase करते हैं, उसके diameter को बढ़ाते हैं. Okay, उसके diameter को बढ़ाएंगे. So the girth of the stem or the root increases due to lateral meristem. Lateral meristem को cambium भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Cambium. Lateral meristematic tissue is also known as cambium. Okay, cambium को बढ़ाते हैं lateral meristem. Lateral meristem is also known as cambium. Now next, intercalary meristematic tissues. These meristematic tissues are present at the base of the leaves and internodes. These are present at the base of the leaves or internodes. Internodes,
दो नोड्स के बीच में जो जगह होती है उसको इंटरनोड बोलते हैं. नोड क्या होता है? जैसे एक स्टेम है, ओके. इसमें जो है, ये जो स्टेम के बीच जो ब्रांच होती है उनके बीच में कई बार आपने ऐसा देखा होगा, यहाँ पर एक जो है ट्विग लगा हुआ है, एक डाली यहाँ से गई हुई है, और तो बीच में एक सांचा से एक लाइन सी बनी रहती है. ऐसी जो दो लाइन अगर बनी हुई है उनके बीच में जो गैप होता है दैट इज, उसको कहते हैं इंटरनोड. और ये जो लाइनें बनी होती हैं इनको बोलते हैं नोड्स, इनको नोड्स बोलते हैं. तो नोड, इंटरनोड होता है दो नोड के बीच में जो जगह होती है उसको इंटरनोड्स बोलते हैं. सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होती है? या तो लीव्स के बेस पे प्रेजेंट होगी, बेस ऑफ द लीव्स, या इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होती है. और इनका मेन काम होता है कि इन पार्ट्स की ग्रोथ करना. इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ दोज पार्ट्स, मतलब दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द इंटरनोड्स, बेस ऑफ द लीव्स. ओके, so these are helpful in these parts. Now these tissues, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं, ओके, क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल्स के बने होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं? डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, लगातार डिवीज़न चलता रहता है, तभी प्लांट की ग्रोथ होती है. ओके, क्योंकि स्टेम, रूट, लीव्स सबकी ग्रोथ जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कारण होती है. तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इन सेल्स के? सो दीज सेल्स आर वेरी एक्टिव. ओके, सो दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म. इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है काफ़ी डेंस होता है. थिन सेलुलोस वॉल, इनकी वॉल कैसी होती है? आपको पता है कि प्लांट सेल जो होते हैं आउटसाइड से सेलुलोस, सेल वॉल से घिरे रहते हैं, सेल वॉल होती है. और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोस की बनी होती है. तो इनकी जो सेल वॉल होती है काफ़ी थिन होती है, थिन सेलुलोस वॉल होती है. और इन सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. दे लैक वैक्यूल्स, इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है. सो दे लैक वैक्यूल्स. ओके, सो दे लैक वैक्यूल्स बिकॉज स्टोरेज का इनमें कुछ काम होता नहीं, क्योंकि लगातार डिवीजन चलता रहता है, नए सेल्स बने, नया डिवीजन हुआ, टेम्परेरी टिश्यूज़ हैं, इसलिए वैक्यूल्स का मेन काम स्टोरेज का होता है. तो इनमें स्टोरेज सेल जो वैक्यूल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं. सो व्हाट आर द मेन प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स? इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि दीज सेल्स आर वेरी एक्टिव, सो दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोस वॉल, एंड they lack vacuoles, and they have prominent nuclei. So these are the prominent differences between these these are the prominent characteristics of these meristematic cells. Okay students, go through all these topic and try to understand it. Thank you.